یہ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، سابق صدر آصف علی زرداری ملکی معیشت مستحکم کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھا لیا۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے صنعتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی برآمدات کو $100 ارب تک لے کر جائیں گے۔ معیشت کی بہتری کے لیے تجارت کو فروغ دینا ہوگا۔ عام آدمی کے مسائل حل ہوں گے تو وہ ٹیکس دینے کے قابل ہوگا۔ ہمیں امداد نہیں، تجارت کے مواقع دیکھنا ہوں گے۔ اگر میری فیملی سمیت چند فیملیاں امیر ہوں گی تو ملک امیر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو امیر بنانے کا فارمولا پاکستان کی صنعت کو آگے بڑھانے میں ہے۔ اگر ہم سندھ میں پڑی بنجر زمین کو آباد کریں تو آپ وہاں مزید صنعت لگا سکتے ہیں۔ جب بھی گوہر اعجاز کو کہتا ہوں منسٹر بن جائیں تو کہتا نہیں ٹیکسٹائل منسٹر بزنس مین ہونا چاہیے۔ Always believed, and I still believe, Pakistan is unique in nature, just unique. God has given it to us as an absolute, if we could use the word, it's a golden basket. But there's an Arabic word called mukh mafi. So the only problem with us is mukh mafi. There is no other problem. تو آج بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ سے بات کریں کہ بھائی چارٹر آف اکانومی میرے سے تو آئی ایم ولنگ ٹو سائن. مائی 2 ministers sitting here will sign with you a charter of economy. If God gives me a chance, I will give you all level playing field. They would have exported at least $2 billion worth of sugar. And if they had, then the coming of IMF would have made it easier. ہم لوگ agriculture Nile کی طرح we were producing. So anybody who doesn't know agriculture doesn't know Pakistan. So we have to understand that. And and then you don't have to shrug responsibilities like some people I know here. جب اس کو بولو کہ تم منسٹر بن جائے، نہیں میں تو نہیں بن، نہیں تو بنتا کون کرے گا پھر تم لوگ اگر نہیں آؤ گے. If you don't take over the reins, then who is going to do it? They won't. They don't understand. God forgive them, but they don't understand. So you have to join my government in your expertise in it. Textile minister has to be from you. Finance minister has to be from you. Then the country works. اسی ملاقات کی بات کریں تو پیٹرن ان چیف ایپٹما گوہر اعجاز نے سابق صدر آصف علی زرداری کو مسائل سے آگاہ کیا۔ کہا کہ زر مبادلہ لانے والی صنعت کا پہیہ رکا ہوا ہے، ہم $9 بلین کی مزید ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم $1 بلین کے لیے IMF کے پاس گڑ گڑا رہے ہیں۔ کہ آپ بڑے دل والے، آپ پاکستان کا سوچتے ہیں، ویٹڈ ایوریج کاسٹ میں کسی صوبے کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ آج کی صنعت اب صنعت کو نہیں مل سکتی گیس $4 کی، کیونکہ اس کو فرسٹ پرائرٹی پورے ملک کو کروا دے پریزیڈنٹ صاحب، پورے ملک کو کروا دے۔ آپ کی ایکسپورٹ $50 بلین 5 سال نہیں، اس کے بعد یہ سارے کھڑے سب موجود ہیں۔ ہمارے پاس صنعتیں بھی لگ گئی ہیں $25 بلین کی آج تو۔ یہ سارے بھاگ کے انہوں نے صرف سلائی مشینیں لگانی آ کے، ہم تو خواب $50 بلین کا دیکھ کے بیٹھے تھے۔ $25 بلین اس سال کا اور اگلے 5 سال میں $50 بلین۔ ہمیں چاہیے صرف ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دس از مائی اونلی ہمبل ریکویسٹ۔ یہ پرنس صاحب آپ نے جب چھوڑی تھی کاٹن کی کراپ، یہ 14.8 پہ آپ نے چھوڑ کے گئے تھے، یہ 5 ملین بیل پہ کراپ پڑی۔ ہم 14.8 پہ کہتے تھے کہ ہم نے کراپ 20 ملین بیل پہ لے کے جانی ہے۔ پرنس صاحب ہم تو خواب دیکھنے والے لوگ ہیں اور ان خوابوں کو حقیقت بنانے والے لوگ بھی ہیں۔ ہم ملک کو $100 بلین کی ایکسپورٹ پہ بھی لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم صرف یہ آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمیں مدد کریں کہ ہم ایسی پالیسی پہ جا سکیں کہ پاکستان 41ویں نمبر کی ایلڈ پہ نہ ہو دنیا میں کاٹن کی۔ اب بات کریں KPT کا ابوظہبی پورٹ سے معاہدے کی تو PIECT کا نام تبدیل ہو کر کراچی گیٹ وے ٹرمینل رکھ دیا گیا۔ وزیر بحری امور فیصل سبزواری کہتے ہیں کہ UAE کے ساتھ پورٹ کا معاہدہ ملک کی معیشت کے ساتھ کراچی پورٹ کے ریونیو میں بھی اضافے کا سبب بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر معاہدے کے بعد $1 ارب 55 کروڑ کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ اگلے 3 ہفتوں میں KPT کو 1 کروڑ موصول ہوں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں اشرف خان کی رپورٹ میں۔
केपीटी का अबुधाबी पोर्ट से मुआहिदा। PICT का नाम तब्दील होकर कराची गेटवे टर्मिनल रख दिया गया। कराची पोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल सब्जवारी ने कहा कि केपीटी का अबुधाबी पोर्ट्स के हमरा मुआहिदा हुआ है। अब PICT का नाम तब्दील होकर कराची गेटवे टर्मिनल कर दिया गया है। ये भी बताया कि इब्तिदाई तौर पर $5 करोड़ की सरमायाकारी के बाद इसमें मजीद इजाफा होगा। मैं सिर्फ ये बता दूं कि देखिए $102 मिलियन की अप्रॉक्सीमेट अगले 3 से 5 साल में जो ये कराची गेटवे टर्मिनल अब नाम हो गया PICT का, इस पर इनका कमिटमेंट है। $1.5 अरब की इनकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है कराची पोर्ट एंड सराउंडिंग एरिया के लिए, लेकिन उसमें से 102 मिलियन आज का अप्रॉक्सीमेट मेरे पास एस्टिमेट मौजूद है, वो है सिर्फ कराची गेटवे टर्मिनल का, और उसमें आप $50 मिलियन की अभी आप फ्रंट पेमेंट भी ऐड कर सकते हैं। फैसल सब्जवारी ने कहा कि 2 नुकात की बुनियाद पर PICT से बात की गई। फरवरी में कौमी असम्बली में कानून मंजूर कराया गया। कानून के मुताबिक दोनों हुकूमतों के माबेन मुआहिदा हुआ, जिसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये भी बताया कि PICT के मुस्तकिल मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा। I have explicitly written legal document with me under KPT's lawyer's custody which says that ICTSI or PICT will not exercise, will not press its first right of refusal and will not enter into any future litigation against Karachi Port. फैसल सब्जवारी ने कहा, साबिक वफाकी वजीर ने G2G मुआहिदे पर गैर संजीदा ट्वीट की। तनकीद बराए इस्लाह की जाए तो अच्छा होगा। इस मुल्क का इंतहाई एक पढ़ा लिखा साबिक वजीर खजाना ये ट्वीट कर रहा हो कि KPT को बेच दिया $1 मिलियन साल की एवज, तो वहाँ पर अगर मैं ₹150 पर स्क्वायर मीटर पर एनम कम में कर देता मुआहिदा, सिर्फ ये सोचते हुए कि डॉलर में होगा तो कितना फ़ायदा होगा, तो आप लोग मेरा क्या करते। वजीर बहरी उमूर का कहना था, हमारी बर्थ पर 21 साल पुरानी क्रेन्स और मशीनें मौजूद थीं। उस वक्त उनकी मालियत $2 करोड़ से जायद थी। अब मजीद 8 नई क्रेन्स और मशीन साउथ एशियन पोर्ट पर पहुँच चुकी हैं। कैमरामैन हसनैन के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर 10,000 नए कैमरे नस्ब करने का फैसला कर लिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेरे सदारत कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट की पेशरफ्त के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर 10,000 नए कैमरे नस्ब करने का फैसला किया गया। इजलास से खिताब करते हुए मेयर कराची का कहना था कि इस प्रोजेक्ट की तमाम मंजूरी हासिल कर ली गई है। ये प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर नए कैमरों की तनसीब के साथ साथ 2000 मौजूदा कैमरों को 4 मरहलों में अपग्रेड किया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी समेत मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यासीन शरबोली गिरफ्तार SBCA के अफसरान को मुअत्तल करके तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी मुकदमे के मुद्दई बिल्डर से भी तफसीलात इकट्ठा करेगी। तफसीलात लेंगे एहसन अब्बासी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये यासीन शर बलूच की हिदायत पर एक तहकीकाती टीम जो है वो तश्कील दी गई है। गुज़िश्ता रात बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के चंद अफसरान जो है वो रिश्वत तलब करने के इल्ज़ाम में जो है मुद्दई की जानिब से, जो बिल्डर है उसकी जानिब से मुकदमा प्रीटी थाने में दर्ज कराया गया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद तहकीकात हुई और उनको जो है SBCA के आला हुकाम को जो है तमाम तफसीलात से पुलिस एहलकारों की जानिब से आगाह किया गया। आज उस पर जो है एक्शन लिया गया है और तहकीकाती जो कमेटी है वो तश्कील दी गई है और उनको फौरी तौर पर मुअत्तल करने की हिदायत जारी की गई है। 20 ग्रेड के बिन शब्बीर हैं, अली मेहदी काज़मी हैं, जो इस तमाम तर मामले की तहकीकात करेंगे, बिल्डर से भी तफसीलात इकट्ठा करेंगे। 40 लाख रुपए जो है वो तलब किए गए थे, मजीद 5 लाख रुपए बिल्डर की जानिब से अदा कर दिए गए थे। तमाम तर मामला जो है वो तामीरात में आग बंद करने के हवाले से शुरू हुआ था, कि जिस पर SBCA के हुकाम ने कहा था कि 45 लाख रुपए लगेंगे, जिसके बाद जो है उनको SBCA के जो मुताल्लिका अफसरान जो है वो तंग नहीं करेंगे, जिस पर बिल्डर ने जो है मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया हुआ उन अफसरान के खिलाफ जिनका ताल्लुक है SBCA से। ठीक है एहसन, आपने हमें अपडेट किया। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। मरीज अद्वियात के बहरान के साथ बुनियादी टेस्ट से भी महरूम हो गए। इमरजेंसी में आए मरीजों को जिना अस्पताल भेजा जा रहा है। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर बंद है और इंतजामिया बात करने से गुरेजा है। राबेल अशरफ की रिपोर्ट देखिए।
50 बिस्तरों पर मुश्तमिल सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी में सेहत सहूलियात का फुकदान। पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इदारे का तमाम बजट PPHI को दिया जाता है। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत, ऑपरेशन थिएटर भी गैर फाल, लिफ्ट को बंद हुए अरसा हो गया। अस्पताल आने वाले मरीजों ने शिकवा किया कि अस्पताल में NED डॉक्टर्स भी मुयस्सर नहीं, ना ही दवाएं फराम की जा रही हैं, जबकि गिनती के चंद एक लेबॉर्ट्री टेस्ट ही हो रहे हैं। जी, मुझे 1 हफ्ते से कान में शदीद दर्द हो रही है, दाने भी निकले हैं और मैं इलाज करवाने आई थी। पहले डॉक्टर था कान के, अब कान के डॉक्टर नहीं है। कुछ दवा यहाँ से देते हैं और कुछ बाहर मेडिकल स्टोर से लेके देते हैं, लिख के देते हैं। अस्पताल की MS ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया। मरीज पर्ची थामे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जबकि डॉक्टर्स नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। मरीजों और तीमारदारों ने हुकूमत और महकमा सेहत से नोटिस लेने और अस्पताल में सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। कराची चिड़ियाघर में सिटी वार्डन्स ने कंट्रोल संभाल लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर हटाए गए डायरेक्टर खालिद हाशमी के बाद चिड़ियाघर में नए डायरेक्टर इकबाल नवाज की तैनाती कर दी गई है। जुनेद जावेद की रिपोर्ट देखिए। मेयर कराची ने डायरेक्टर चिड़ियाघर खालिद हाशमी को ओहदे से हटा दिया। सिटी वार्डन्स ने पूरी रात चिड़ियाघर का कंट्रोल संभाले रखा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इकबाल नवाज को नया डायरेक्टर जू मुकर्रर कर दिया। डायरेक्टर जू ने अवाम का दाखिला बंद होने की खबरों की तरदीद की और शहरियों को दावत दी कि आएँ और जम कर इंजॉय करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह जो है वो काम किया जाएगा और जू की बेहतरी के लिए और शहर की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह काम करेंगे। कुल आवाम है, अपनी फैमिलीज आए, सारे सबके लिए ओपन है। कोई यहाँ पे कोई ऐसी किसी किस्म को भी किसी चीज़ को भी यहाँ पे रोका नहीं गया है। डायरेक्टर सिटी वार्डन्स राजा रुस्तम ने वार्डन्स की भारी नफरी की चिड़ियाघर में मौजूदगी को मामूल के मुताबिक करार दिया है। सुबह भी रूटीन में सिक्योरिटी हमारी आई है और फिर नए डायरेक्टर साहब जो आए हैं उनका हमने बाकायदा इस्तकबाल किया है। मैं खुद इसलिए आया था कि कोई बदमज़गी न हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, वरना सुबह से स्टाफ भी आ रहा है, लोग भी आ रही, पब्लिक भी आ रही है और बड़े पुरअमन तरीके से डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने चार्ज ले लिया। माजी में खालिद हाशमी को हटाए जाने के बाद चंद लोगों ने गार्डन जू में दाखिल होकर शोर शराबा और हंगामा आराई की थी, जिसके बाइस मेयर कराची की हिदायत पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। डायरेक्टर जू के मुताबिक अगर किसी ने भी चिड़ियाघर की हुदूद में अमन को नुकसान पहुँचाया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जुनेद जावेद, सिटी 21, कराची। सिंध सरकार ने बल्दियाती काउंसिल्स में तैनात गैर मुतल्लिका अफसरान को ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। गैर मुतल्लिका अफसरान को 48 घंटों के अंदर ओहदा छोड़कर मुतल्लिका महकमों में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। बल्दियाती काउंसिल्स में गैर मुतल्लिका अफसरान पर शामत आ गई। सिंध सरकार ने बल्दियाती काउंसिल्स में तैनात गैर मुतल्लिका अफसरान को हटाने का हुक्म दे दिया। अफसरान में PAS, XPCS, PSS और PMS ग्रुप शामिल हैं। अफसरान को 24 घंटों में ओहदे छोड़ने का हुक्म दे दिया। गैर मुतल्लिका महकमों के अफसरान को ओहदे छोड़ने का हुक्म बल्दियाती एक्ट 2021 के तहत दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डेमोलिशन स्क्वाड ने लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इमारत में गैर कानूनी ज़ेर तामीर फ्लोर को मस्मार कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का महकमा डेमोलिशन मुतहरक हो गया। अदालती अहकामात पर कार्रवाई करते हुए लियाकताबाद नंबर 4 इरम बेकरी के करीब ज़ेर तामीर गैर कानूनी चौथी मंजिल की दीवारों को मस्मार कर दिया। बिल्डिंग कंट्रोल के महकमे डेमोलिशन से असिस्टेंट डायरेक्टर ने ऑपरेशन की निगरानी की, ताहम बिल्डर को पाबंद किया कि वो आइंदा गैर कानूनी तामीर से गुरेज करे। असिस्टेंट डायरेक्टर डेमोलिशन रेहान कायम खान ने कहा कि जहां जहां शिकायत मौसूल होंगी वहां कार्रवाई करेंगे। DG SPCA की हिदायत पर लियाकताबाद के 4 मुकामात पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। सिंध हाई कोर्ट ने चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत कर दी। अथॉरिटी ने कार्रवाइयों से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। खिलौने, पेंसिल और किताब के बजाय मासूम बच्चों को भीख माफिया के शिकंजे से आज़ाद कराने के लिए कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान बच्चों से सड़कों चौराहों पर भीख मंगवाने से मुतालिक समाअत हुई। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। डायरेक्टर जनरल प्रोटेक्शन अथॉरिटी असगर अली घांगरू ने बताया कि 214 बच्चों को रेस्क्यू करके अदालतों में पेश किया गया है। बच्चों से भीख मंगवाने वालों के खिलाफ 38 मुकदमात दायर किए गए हैं, जिनमें से 77 मुल्जिमान
को नामजद किया गया है। दोस्तों 14 बच्चे अभी जो अब्यूज हो रहे थे रोड्स पे, इनको रेस्क्यू करके कोर्ट में पेश किया है कराची में। जी सिर्फ कराची में, ठीक है। और ये प्रोसेस चल रहा है, इंशाल्लाह चलता रहेगा जब तक ताकि इस तरह के जो मिसक्रिएंट्स हैं, हैंडलर्स हैं, वो उनको थोड़ी डिस्करेजमेंट मिले। असगर गांगोरो ने कहा कि कानून कमज़ोर होने और काबिल ज़मानत दफात होने की वजह से मुलजमान बआसानी रिहाई हासिल कर लेते हैं। समाअत के दौरान अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत कर दी। महकमे कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के अहकाम की खुलम खुला खिलाफ वर्जी जारी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बेशतर कॉलेजेस में एडमिट कार्ड्स की मद में गैर कानूनी फीस वसूल की जाने लगी। जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। फर्स्ट ईयर के एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए सुबह सवेरे ही जिना और प्रीमियर गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर तलबा का तांता बंधा रहा। दोनों कॉलेजेस की इंतजामिया की जानिब से फर्स्ट ईयर के तलबा से एडमिट कार्ड की मद में 30 रुपए से 100 रुपए तक लिए जाने लगे। अरेंजमेंट नहीं है इतनी अच्छी के लाइन से खड़ा करें, बस आवाजें दे रहे हैं, धक्के पड़ रहे हैं। और फिर जब हम लाइन के जब हम खिड़की पे पहुंचते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि 50 रुपए 30 रुपए फिर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 3 ऑपरेट हैं और तीनों पे रश इतना है कि खड़ा होना, गर्मी इतनी है, कोई सहूलत ऐसे नहीं करी हुई, बहुत टाइम लग रहा है एडमिट कार्ड के लिए सिर्फ। तलबा ने शिकवा किया कि इंतजामिया का रवैया तालिब इल्मों के साथ अच्छा नहीं, जबकि नाजायज फीस वसूली पर भी तालिब इल्मों का कोई पुरसाने हाल नहीं। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मामले का नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान चेसोरी ने नौजवानों को खुशखबरी सुना दी। गवर्नर सिंध की वेबसाइट पर IT कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 4,60,000 तलबा के लिए ईद के बाद गवर्नर हाउस में टेस्ट मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। नौजवानों के लिए खुशखबरी, गवर्नर सिंध ने बड़ा ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा कि ईद के बाद IT कोर्सेज के लिए गवर्नर हाउस में टेस्ट शुरू होंगे। ईमेल के जरिए रजिस्टर लोगों को बुलाया जाएगा। IT प्रोग्राम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करेगा। इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद पहले ही हफ्ते में टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तैयारी कर लें और इंशाल्लाह ताला ये 4.5 लाख या 5 लाख बच्चों को हम ईमेल भेजेंगे। बता दिया जाएगा कि एक टाइम पर कितने लोग आके टेस्ट देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला हमारा अब शुरू होने वाला है। गवर्नर सिंध बोले कि इंतजामात मुकम्मल हैं। गवर्नर हाउस में कंप्यूटर और टेस्ट पेपर आ चुके हैं। फर्नीचर ईद के बाद आएगा। हम वो कोर्स करवाएंगे जिससे नौकरी मिलेगी। कंप्यूटर जो है गवर्नर हाउस में आ चुके हैं। हमारे पास मार्की एयर कंडीशन लग चुकी है। उसका जो फर्नीचर है वो तकरीबन ईद के दूसरे दिन वहाँ नस्ब हो जाएगा। हम तकरीबन चीज़ों के मराहिल में तैयार हैं। वहाँ पर जो पेपर जिसे हम कहते हैं जो टेस्ट पेपर है वो तैयार हो चुका है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इस वक्त IT कोर्सेज की मद में लाखों रुपए फीस वसूल कर रहे हैं। गवर्नर सिंध के इस इकदाम से नौजवानों की सलाहियतों में इजाफा होगा। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। 18 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 150 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट तय किया गया है। सिंध के 9 अजला में 19 जून से इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान 120 UCs में 18 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ रखा गया। इंसदादे पोलियो मुहिम हैदराबाद, जामशोरो, कराची वस्ती, शर्की, केमाड़ी, कोरंगी, मलीर, कराची जुनूबी और गरबी में हो रही है। मुहिम के दौरान 10,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए 2,200 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। 7 रोज़ा मुहिम 25 जून तक जारी रहेगी। DHO कोरंगी मोहम्मद अफजल ओठो का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में अब तक किसी पोलियो वर्कर्स की तरफ से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। और अब आपको बताएं कि सिंध सरकार ने ईद कुर्बान की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 28 जून से 1 जुलाई तक आम तातीलात होंगी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक बुध से हफ्ते के रोज तक सरकारी व नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बलदियाती काउंसिल्स में भी आम तातील होगी। मलीर नदी में कचरा, सॉलिड वेस्ट, तामीराती मलबा फेंकने पर कराची इंतजामिया का नोटिस। कमिश्नर कराची की जानिब से 2 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई।
जी हाँ, मलेर नदी में कचरा, सॉलिड वेस्ट, तामीराती मलबा फेंकने पर कराची इंतजामिया ने नोटिस लिया है। कमिश्नर कराची की जानिब से 2 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। मलेर नदी में कचरा, सॉलिड वेस्ट, तामीराती मलबा और अलाइशे डालने पर पाबंदी आयद की गई है। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बायस जो है मलीर नदी में कचरा, सॉलिड वेस्ट, तामीराती मलबा फेंकने पर जो है वो मुकम्मल तौर पे 2 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। दफ़ा 144 जो है वो मलीर नदी पे लागू कर दी गई है, जिसका क्लास जो है वो आज रात 12 बजे के बाद से होगा। इस नोटिफिकेशन से तमाम डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और मुताल्लिका पुलिस के आला हुकाम को जो है वो आगाह कर दिया गया है। खिलाफ वर्जी बरतने अनासर के खिलाफ, वो लोग जो खिलाफ वर्जी बरतेंगे उनके खिलाफ जो है दफ़ा 144 के तहत जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बकरीद के दिनों में अलाइशे फेंकने पर भी जो है वो इस मलीर नदी में पाबंदी लागू होगी, क्योंकि अलाइशे मलबा कचरा फेंकने से जो है वो नदी के बहाव में पानी के खलल में पानी की बहाव में जो है वो खलल पैदा होता है, जिसके बायस इसी तनाजुर में ये 2 माह के लिए मानसून का सीजन के बायस जो है वो ये पाबंदी लगाई गई है। जी बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी। बिजली की कीमत में बार बार इजाफे ने बरामद कुनंदगान की मुश्किलात बढ़ा दी हैं और पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा है कि ये समझना होगा कि पैदावारी लागत से ही रीजनल ममालिक से मुकाबला किया जा सकता है। सवाल तो ये है कि नए माली साल में एक्सपोर्ट का $30 अरब का हदफ कैसे पूरा होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा, एक्सपोर्टर्स की मुश्किलात भी बढ़ने लगी। फूड एसोसिएशन ने पैदावारी लागत बढ़ना सनतों के लिए बहुत बड़ा खतरा करार दे दिया। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी का कहना है कि बिजली की कीमत बढ़ती जा रही है, किस रेट पर कॉस्ट निकालें समझ से बाहर है। ये भी कहा कि पैदावारी लागत बढ़ना सनतों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि पहले ही मुश्किलात में थे, महंगी शरह सूद, महंगी बिजली और गैस ने मसाइल खड़े कर दिए हैं। जो बिजली, जो गैस आप 1 साल पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, आज आप कहेंगे 1 साल पहले के अब आप वाजिबात उसके अंदर दे दें, तो ये तो फिर मुझे लगता है कि जितने पाकिस्तान से सनतकार पहले जाते थे, कोई बांग्लादेश चले गया, कोई दुबई चला गया, कोई, तो मुझे लगता है कि अब मज़ीद और भी लोग जो है ना यहाँ से पाकिस्तान से सनतों को बंद करके चले जाएंगे और आपके जो बेरोज़गारी होगी वो इतने उरूज पर आ जाएगी। और जब बेरोज़गारी होती है तो आपके स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट होती है। तो पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में। राशिद सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि अब बिजली के 2-3 साल पुराने सहमाही एडजस्टमेंट के नाम पर बढ़ा दिए, अब इसको कहां एडजस्ट करेंगे और रीजनल ममालिक से कैसे मुकाबला करेंगे। एक तो वैसे हम बहुत प्रेशर में कि डॉलर महंगा, डॉलर की अनसर्टेनिटी, फिर बिजली के हर आने दिन के ऊपर बिजली महंगी होती रही, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम, जो बैंक का इंटरेस्ट है उसके ऊपर प्रॉब्लम। तो हमने तो बहुत ही मुश्किल से हम उल्टे भी लटक जाते हैं, लेकिन हमारी फिजिबिलिटी नहीं बन पा रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडस्ट्री को चला रहे थे। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर ने कहा कि बरामदात में हमारा मुकाबला भारत, चीन और तुर्की से है और बजट में नए माली साल में बरामदात का हदफ $30 अरब रखा है, ये कैसे पूरा होगा। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किलात लाएगा, हुकूमत को सनतकारों और बिजनेसमैन के साथ बैठकर हंगामी बुनियादों पर माशी पॉलिसी बनानी होगी। कैमरामैन वकास के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में एक बार फिर बचत एक्सपो सज किया है। गवर्नर सिंह ने इफ्तिताह के मौके पर एक्सपो में 50% तक रियायत की भी नवीद सुना दी। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने रिबन काट कर बचत एक्सपो के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध बोले कि बचत एक्सपो में 25 से 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। उन्होंने कहा कि दस्तरखान के साथ IT और रोजगार देने में भी सैलानी आगे है। सिर्फ दस्तरखान की हद तक सैलानी नहीं है, बल्कि सैलानी IT की फील्ड में लोगों के रोज़गार और उनको मौके देना, उनके इंतज़ाम करना। तो जब ये एक्सपो यहाँ शुरू हो रही थी तो हमारे जो सैलानी में जहाँ बशीर फारूकी साहब उनके करता धरता हैं, वहाँ हमारे अफजल चामड़िया भाई भी उनके शाना बशाना खड़े हैं। कामरान टिसोरी का कहना था कि अब कहीं दूर जाकर लुटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सपो में ही मवेशी मंडी लगाई गई है। मवेशी मंडी का भी इसी एक्सपो में इंतज़ाम किया गया है। तो जो अहलियान कराची हैं, अब उन्हें कहीं दूर जाकर अपने पैसे लुटने की ज़रूरत नहीं है।
बल्कि वो यहाँ एक्सपो में आएँ और यहीं से अपने मवेशी भी खरीद सकते हैं। एक्सपो सेंटर में बचत एक्सपो 23 से 25 जून तक जारी रहेगी, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों के 150 से जायद स्टॉल सजाए गए हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21।